All right, let me share my screen first. So, and also the timer as well. So we keep it on track. All right. So starting off, what we will gonna see or learn today, I will just give you a sneak peek so we have the excitement throughout. So this is the design that we will be discussing on Figma, and then we will convert it into the Webflow uh, Zaid, using are you Webflow. sharing something besides your Google slide? Because we can only see your Google slides. Yeah. Okay, I am really sorry about that. Let me Yeah. do that again. Entire screen, screen one, share now. Is it visible? Yes, we can see that. Okay, awesome. Okay, awesome. Yes. So this is the design that we will see how to make it on Figma. Uh, it's an E. I just came up with it that for example अगर हम मेरे पास एक आइडिया है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा की जो है ना एक प्रोडक्ट वेबसाइट बनानी है मार्केटिंग वेबसाइट एंड आई डोंट नो हाउ टू कोड तो हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे सेम इसी को ही हम वी विल कन्वर्ट इट ऑन वेबफ्लो so this is the converted version. And interesting thing is that I will gonna give you both the links by end of the session, so you can have a clonable project and a Figma design file that you can work around and experiment at your own. So starting off with my introduction, uh, my name is Zaire Abbas. I'm the principal product designer at Creative Chaos. I have around 17 plus years of experience in building, designing, and developing websites and mobile experiences for more than 150 clients across the globe. Some of the brands that I have worked with are McDonald's, Coke Studio, and Unilever, Toyota, and there are many more. My hobbies are to play table tennis and sometimes also play guitar. I watch movies, series. I love to travel. I am a big foodie. What else a Karachiite can do? And I like to take picture of that food as well. My skill set these days, other than the 100 things I can do, just a little flex. I focus morely towards UX UI, Figma. Figma is love, my main reason to coming back to design. Then Webflow, my another reason to coming back to development also. And AI tools, I'm just loving it. They are scary, yes, but they are the future, and you have to adopt in to be in the industry. And I am still learning. I still feel I know nothing by doing all these things. As long as you learn things, you feel that you actually know nothing. So, who who are the target audience for this session? They are mostly non-technical who needs a website for their startup or campaign, or who want to convey their idea with the world without depending on a designer or a developer. uh, Second, designers who want to upscale their game and provide a realistic prototype to their clients or the management team to give it a more realistic feel. Third one are the developers or anyone who just want to explore how we can build website in this time. This session will cover designing in Figma, exporting assets, then a little bit about usage of your AI tools like ChatGPT and Midjourney in your workflow. Then we will move on. Mainly, the main part is to convert the Figma design into Webflow, and I'm sure we're going to have some Q&A after that. So starting off, what should you know? You should know how to inspect element in a browser. So let me just show you. I will keep the language mix. I think I will be more comfortable in doing it in Urdu mostly because इंग्लिश में तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट में मिल जाएगा. So, but let me know if you don't understand anything. I am happy to answer them in English. Okay. So, for example, if we open a Apple website,
तो हम अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैकबुक एयर 15 की जगह अपना नाम लिखूँ, तो आई विल जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, आई विल इंस्पेक्ट एन एलिमेंट एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट। बाकी आप चीज़ें इग्नोर करें एंड जस्ट यू डबल क्लिक and just write Zaira Pass. So we can actually play around uh, with the text, or we can also change images and take a screenshot and provide it to someone. Is But sir, we some cannot save it because it's an official website, so we cannot yeah save our name. yeah उसमें उसके एप्पल की साइट पे कोई फर्क नहीं होगा, इट्स ओनली ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर डिस्प्ले. But just to play around how HTML works, you can just click on each element and see. Which is my next part, is that you must know basic HTML CSS tags. Uh, you also need to know about CSS box model. जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब बॉक्स मॉडल के अराउंड है. तो जो भी आप अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हुए देखें तो हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर है, और उस बॉक्स जितने भी बॉक्सेस हैं उन सबको वी कैन स्टाइल दैम by using the CSS properties, which we will gonna cover in the Webflow part. और अगर आप इसमें जाएं तो जैसे मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया है और मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो दिस विल एक्सप्लेन कि मुझे इसके अंदर कितनी मार्जिन जो है वो एड अप हुई है. तो इट्स अ बॉक्स मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ विड्थ एंड हाइट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन. तो जो भी HTML में एलिमेंट होता है हम उसमें ये सारी चीज़ों को जो है ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. फिर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक फ्लेक्स, बॉक्स एंड ग्रिड. अगर ये आप लोग जान लें या समझ लें तो ये बहुत आपके काम आने वाला है जो भी वेब लेआउट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम इनटू वेबफ्लो. ऑल्सो वेबफ्लो के अपना एक यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पे. दे हैव अ रियली ग्रेट वीडियोस, रियली ग्रेट ट्यूटोरियल्स. आई स्ट्रांगली रिकमेंड देम कि आप वो सारे लेसन्स देखें, और बहुत इजी और फ्रेंडली वे में उन्होंने समझाया हुआ है. फिग्मा में ऑटो लेआउट ये बेसिक्स के लिए नहीं है, ये कह लें जो बिगनर से ऊपर जो अपना इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग हैं उनको ऑटो लेआउट फिग्मा का समझना चाहिए. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ फिग्मा टू वेबफ्लो प्लग इन जो डायरेक्टली फिग्मा डिज़ाइन को वेबफ्लो में कन्वर्ट कर देता है विदाउट यू हैविंग टू एक्चुअली बिल्ड दैट ऑन वेबफ्लो. बट उसके लिए आपको फिग्मा ऑटो लेआउट बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी वो प्लगइन जो है वो काम करेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द फिग्मा. अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक आइडिया आया है कि एक ई रिक्शा की जो है ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा की जो है एक वेबसाइट बनानी है. इट्स कूल रिक्शा दैट्स कमिंग अप और विल बी लॉन्च इन पाकिस्तान मे बी. बट उसको जो है अगर एक आइडिया को जो है वो एक फुल फ्लैज उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं. आई माई सेल्फ इज़ अ डिज़ाइनर डेवलपर, बट आई विल कीप इट लाइक वेरी बेसिक कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं. मुझे इसको बनाने में तकरीबन 3 घंटे लगे थे. 3 घंटे किस तरह से कि एक आइडिया सोचने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक. और उसमें what I did is I will only recommend all of you to go to figma.com/community. इनकी कम्युनिटी में आप देखें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ्री में अवेलेबल हैं, पेड भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्री. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यू कैन जस्ट पिक इट अप. आप ट्रेन योर आइज कि किस तरह का काम हो रहा है ऑलरेडी वेब वर्ल्ड में, और आप किस तरह से किस डिज़ाइन को पिक करके उसको कन्वर्ट कर Zaire? या Sorry for cutting you off. So, can you also give a little introduction of what is Figma? Because a few people are asking that in the chat. What Okay. is Figma? So Figma is basically a design tool where you can actually build your design. आपके कहते हैं कि जो इसमें main elements है. Obviously there are a lot of videos already on internet which will explain it much more better, but it's a design tool. आप इसमें squares ऐड कर सकते हैं, आप इसमें pictures ऐड कर सकते हैं. You can actually design your web or mobile apps, and you can
actually prototype them, build a prototype and share it with anyone on the world. Sir, but I have a question. We can do all these things on Photoshop, Illustrator, or any other software as well. Yeah. But why we choose Figma for the websites? So it's altogether different debate, but if whatever you are flexible with, आप अगर Photoshop पे flexible है, but industry change हो रही है, it's basically the environment it comes with, जो क्या कहते हैं, इसके अंदर कमेंटिंग हो गई, इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग हो गई. अगर आप फोटोशॉप पे बनाएंगे दैन इट विल बी अ स्टैटिक वर्जन. अभी क्या है कि मैं जैसे यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, I can actually share this link with you all, and when I'm making any change, you can see it lively on your screen as well. So it's much more quicker. Photoshop में क्या होगा कि आप Photoshop में बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, वो फाइल कहीं अपलोड करेंगे, उस फाइल को भी सेंड करेंगे, और इवन अगर हमें कोलैबोरेशन करनी है with the different designer, so I can just add them by just clicking on share and adding their email address, and they can jump right over there and work collaboratively. So these are few things that make it apart from other designing softwares. But आप चाहें तो Google Slide पे भी अपनी website design कर सकते हैं. So basically, sir, in today's session, you are just telling us how we can design our website in the Figma, right? Yes, you बिल्कुल. But we आप need programming for uploading our website officially. Yes, that is the second part, where I will teach you how to convert the design into Webflow. So, yeah. Okay. So I was at the community. So I found this layout. I feel that it's a good fit for my idea that I could work around it. So मैं क्या करूँगा? I just have to open it in Figma. This will automatically duplicate. This is how I found another design that I come up with this. तो एक रिल्यूम के नाम से एक एजेंसी है, वो दे डू रियली गुड डिज़ाइन लीग्स. आई ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल द डिज़ाइनर्स टू फॉलो देम. तो वो उनकी एक डिज़ाइन लीग चलती है जिसमें 30 मिनट्स में उनको एक डिज़ाइन बनाना होता है. तो जोसेफ बेरी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, जो अभी वो फाइनल जीते भी हैं. तो ये उनका डिज़ाइन है बेसिकली, और ये कम्युनिटी में पड़ा हुआ है. और एक काउबॉय साइकिल जो है वो एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, जो कि एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, और उन्होंने उसकी इमेजेस को यूज़ करते हुए एक उनका ही डिज़ाइन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उनके लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया था. तो मैं आई पिक दैट अप एंड आई थॉट कि ये इट विल बी अ गुड फिट फॉर माई इलेक्ट्रिक रिक्शा डिज़ाइन. सो आई टुक इंस्पिरेशन, बट व्हाट आई डिड इज़, ऑब्वियसली मुझे ये उस कॉम्बिनेशन में इमेजेस तो नहीं मिल रही थी. अगर मैं बनाने बैठता तो मे बी इसमें 3-4 दिन लग जाते, और मुझे 3D का भी काम करना पड़ता. तो here comes the AI part. I jumped onto the Midjourney and I wrote a prompt: create electric rickshaw in matte gray body color with black and red on lights with transparent background. So Midjourney came up with 4 options for me, and I immediately picked all of them. So that within like few seconds I have the graphics ready for my design. एंड ऑब्वियसली जो डिज़ाइनर्स हैं प्लीज़ वो घबराएं नहीं, उनकी जॉब नहीं जाएगी. एंड ये एक तरह से मेरे कह लें कि एक कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया. ऑब्वियसली जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो एक 3D एनिमेटर भी चाहिए होगा, ग्राफिक डिज़ाइनर भी चाहिए होगा जो एक्चुअली इसको बिल्ड करेगा. इसका इंटीरियर पार्ट मिसिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग. तो बट मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो सेम गोज़ विद द कंटेंट. अब कंटेंट मुझे करना था, तो बस एक जो चीज़ है जिस पे जो मैंने किया है वो सिर्फ मैंने इसका नाम रखा है ई रिक्शा, और एक छोटा सा स्मॉल लोगो जो है वो क्रिएट किया है विद फ्लैट आइकन पे जाके 2 आइकन्स को मर्ज करके एक लोगो बिल्ड कर दिया. अच्छा, तो फिर मैं ChatGPT पे गया एंड देन आई जस्ट रोट अ लाइन: राइट स्मॉल वेबसाइट कंटेंट फॉर इलेक्ट्रिक रिक्शा कार. तो उसने मुझे एक अच्छा सा 1 पेजर डिफरेंट हेडिंग और टेक्स्ट के हिसाब से कंटेंट दे दिया, जो एक बेसिक कंटेंट चाहिए होता है.
तो जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो स्टॉप यूजिंग लॉरम इप्सम, आप चैट जीपीटी से जो है कंटेंट लिखवा सकते हैं और वो कंटेंट यूज़ करें अपने डिज़ाइन को ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए। अच्छा, फिर मुझे कुछ की फीचर्स चाहिए थे तो वो भी मैंने इससे मांग लिए। फिर मैंने कहा कि मुझे वन लाइनर जो टेक्स्ट दो, जो ऊपर सारा टेक्स्ट दिया है तो उसने वन लाइनर दे दिया। फिर मैंने कहा मुझे इसको कि मोर कंसाइज करे, तो उसने उसी को थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में दे दिया। मैं कहा नहीं, मुझे मोर कॉम्पैक्ट चाहिए, तो फिर उसने थोड़ा सा और एक्चुअली मुझे 4 वर्ड्स चाहिए थे, तो आई जस्ट रोट 4 वर्ड्स ओनली, तो उसने मुझे 4 वर्ड्स लिख के दे दिया। तो सिमिलर जो मुझे टैगलाइंस और चीज़ें चाहिए होती थी, तो आई जस्ट कीप, हमने जैसे अगर 10 वर्ड्स मुझे पैराग्राफ से चाहिए तो मैंने वो पैराग्राफ कोट में लिखा और मुझे वो 10 वर्ड्स में उसने कन्वर्ट करके दे दिया। तो इस तरह से मुझे जो है सारा कॉपी अपने डिज़ाइन की मिल गई। एंड देन मैंने उसमें अपनी एक लोकल, जैसे वहाँ पे कम्यूट लिखा था विच वॉज लुकिंग वेरी गुड, तो मैंने कहा हम इसको थोड़ा सा लोकल टच दें तो चलें। आई केम अप विद एंड आई रोट दैट एज अ टैग लाइन मे बी। तो फिर कुछ स्टैट्स आ गए, देन फिर टेक्स्ट आ गया। ये जो बड़ा सा टेक्स्ट है जैसे कूल थिंग, जो कि हम अभी अपने वेब फ्लो पे देख सकते हैं कि जब आप स्क्रॉल डाउन एंड अप करते हैं तो ये दिस जस्ट मूव अराउंड। सो फिर नीचे जाते हैं तो वी हैव अ ग्रिड ऑफ फीचर, जिसमें हमने फीचर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेक्स, ऑब्वियसली दिस इज ऑल डमी, नथिंग, मतलब कोई सॉलिड वो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेस्ड ऑन अजम्पशन कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन फिर हमारे पास FAQs और फिर फुटर। Any question till now for regarding the design part or the process? So yeah, there are a few questions in the chat. Yeah, so I'll just read them out for you. In the context of modern web design, what are your thoughts on the use of micro interactions to enhance user engagement and create a more dynamic user experience? Obviously it's a good thing. आप जितना रियलिस्टिक अपना प्रोटोटाइप और माइक्रो इंटरेक्शंस रख के डिज़ाइन को बनाएंगे तो वो जितना करीब तर हो सकता है आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, बिफोर मूविंग एक्चुअली इनटू डेवलपमेंट, तो आप वहीं पे अपना जो डिस्कवरी फेज कह लें इसको, कि जिसमें UI UX और सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो काफ़ी वैल्यूबल होगा आपके लिए। But it's altogether a different discussion. We are not discussing कि उसमें प्रोटोटाइपिंग, क्योंकि ये आ जाता है फिर completely on towards Figma side, और Figma का एक पूरा सेशन हो जहाँ पे हम इसको एक्चुअली मल्टीपल पेजेस बिल्ड कर रहे हों और फिर क्लिक करके उसमें उन सेक्शंस पे जा रहे हों और उसमें हम माउस ओवर के इंटरेक्शन बनाएं, पेज लोड के इंटरेक्शन बनाएं, तो वो एक आई थिंक सेपरेट सेशन में हो सकता है कवर। Yeah. Okay, so next question is, does Midjourney generate images for free? I have a paid account, but I think initially you could create 25 images, but I think it's a paid version. There are also few free websites as well. I am just forgetting their name. I think Leonardo gives you Leonardo, 150 the credits other for free. platforms, yeah. या तो वो भी आप यूज कर But सकते हैं। actually you can free find- कोई भी नहीं है. They have, yeah. Yeah. ठीक Okay. है। Next question is, copying and then customizing the design from the Figma community falls under plagiarism or raise questions on ethics? Someone is asking from the context of a freelance UI UX developer. Obviously if you're getting paid for it, you need to have a different design altogether. आप copy paste तो बिल्कुल नहीं कर सकते उसको, but in this scenario obviously I have to teach something, तो I consolidated कि यार मैं किस तरह से आपको जो है ना वो, क्योंकि obviously I can't show you the actual work we do for our clients, तो that's why came up with this within very few time. but लेकिन जिनको नहीं आता और वो अगर ये चीज़ अचीव कर पाएँ तो आई थिंक आप कॉपी करते हैं, यू ट्रेन योर आई
एंड देन यू इम्प्लीमेंट दैट. आप डिफरेंट साइट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर वो आप जब चीज़ बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू पॉलिश अप योर स्किल्स एज वेल. और आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैंने चीज़ जो है बिल्कुल छाप के किसी के लिए दे दी है. तो दिस इज़ फॉर द ट्रेनिंग पर्पजेज, बट आप प्लीज़ इसको पेड प्रोजेक्ट्स में जो है इस तरह के काम बिल्कुल मत कीजिएगा. Okay. Moving on to the next question. What and why was your font selection for this project? So what was it and why was it that? इसमें कोई ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बस मुझे ये आजकल एक फॉन्ट बड़ा अच्छा लगा है गूगल का, सोरा. तो बस दैट्स द रीज़न. द अदर फॉन्ट इज पॉपिन्स एंड सतोशी इज ऑल्सो, बट इज दैट्स नॉट अ गूगल फॉन्ट. But every designer has few selected go-to fonts that they just put in without keeping it. It seems a bit modern, but that's why. जैसे Y के इसमें करनिंग है तो आजकल इस तरह के वो grotesque वाले डिज़ाइन fonts चल रहे हैं. So just give you a bit modern feel, and obviously whenever you're selecting font, you just have to have different weight, font weights. Please do check कि उसमें अब जैसे इसमें इटैलिसाइज नहीं है तो इट्स नॉट अ गुड फॉन्ट के हम सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही फॉन्ट में करें. एंड कीप मिनिमल फॉन्ट्स फॉर योर डिज़ाइंस एज वेल. कि हम मल्टीपल मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स पे आपकी कोई भी प्रोजेक्ट जो होना चाहिए, इससे ज़्यादा फॉन्ट पे हमें नहीं जाना चाहिए. Okay. How much time does it take to learn UI UX? I think this is a little off topic, but just like reading it out. Yeah, experimenting it, keep working on it, take inspiration, make changes. You Yeah. will Yeah. get to the point. I am still learning. Yeah. Okay. Yeah. Makes sense. So, yeah. So there are, I think, okay, we have a lot of questions. Zahir, do you want to take them right now or towards the end? Let's move towards, because हमारा जो main session है वो है Webflow पे convert करना. तो I think वो that will take a lot of time. तो हम उस पे move करते हैं. Maybe we can have a different altogether different session for Figma specific and designing. Yeah, and later we on. can then go through them towards the end, all of these questions, or even in the middle if you feel like it. Sure, we have a lot coming, so yeah, okay. Awesome. Okay, so अब move करते हैं to Webflow. अच्छा, Webflow में you have to sign up first. Once you sign up, आप एक डैशबोर्ड में ओपन होगा आपके पास, and you just have to create a new site. अब अगर आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, Webflow पे बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर. बट अगर आपके पास डिज़ाइन है तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट. Sorry, just elaborate a little bit on what Webflow is also. Okay, so people who don't know what Webflow is a no-code tool for building production-level websites without you having to code any. तो आप कोडिंग के बगैर जो है अपनी साइट बिल्ड कर सकते हैं, जो कि अभी हम करेंगे. तो दिस विल मोर एक्सप्लेन यू फर्दर बिट. तो हम इसका नाम कर देते हैं ई-रिक्शा साइट. तो आप भी जब क्रिएट करें तो कोई अच्छा सा नाम रख लें इसका. एंड ओके, कल से कुछ वेबफ्लो के जो है ना उस पर डाउन टाइम आया हुआ है. इनके डैशबोर्ड और डिज़ाइनर मोड जो है वो थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है. ऑलराइट, सो अब हम जैसे ही वेबफ्लो पे आते हैं तो वेबफ्लो पे आपको तो लेफ़्ट पैनल नज़र आता है जिसमें टूल्स कह लें आपके एलिमेंट्स हैं. मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है जो सारी बेसिक्स आपको इसकी समझा देगा. मैं ज़्यादा सेशन को जो है ना स्पेसिफिक रखूँगा कि किस तरह से हम एक ऐसा बंदा जिसको इससे पहले वेबफ्लो यूज़ नहीं किया तो वो किस तरह से किस एलिमेंट को जो है ना इस पर फर्दर बिल्ड कर सकता है. तो आई विल जस्ट राइटली ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाता जाऊँगा आई विल गोना एक्सप्लेन कि ये मैंने क्यों किया है और क्या उसका रीज़न है, ताकि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो सके. बट क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाने लगूँगा अभी से, अगर रिस्पॉन्सिव और इस तरह की चीज़ें बताऊँगा तो इट विल बी ओवरवेलमिंग फॉर अ न्यू कमर कि जिसको आइडिया नहीं है वेबसाइट
डिज़ाइनिंग का। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय, अच्छा जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बॉक्स मॉडल हमें समझना चाहिए। तो बॉक्स मॉडल जब भी हम लेआउट को कन्वर्ट कर रहे हों, ये तो मतलब ये हर किसी के लिए है जो भी डेवलपर है, जो भी सीखना चाह रहा है। तो जब भी आप वेबसाइट को कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑलवेज थिंक ऑफ देम इन बॉक्सेस, क्योंकि CSS इसी तरह से काम करती है। तो हर ऑब्जेक्ट को जो है वो एक बॉक्स के अंदर, और बॉक्स मीन्स डिव इन HTML, तो हम डिव ले रहे होंगे उसके लिए, और कुछ उसके जो HTML के एलिमेंट्स हैं हम वो ले रहे होंगे। बट वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेब फ्लो में जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एन एलिमेंट और उसको हम स्टाइल कर देंगे उस हिसाब से। तो अब इसको भी अगर हम देखें तो हर चीज़ जो है वो एक बॉक्स के अंदर मैंने रखी हुई है ऑलरेडी। तो इतने बॉक्सेस मुझे लेने पड़ेंगे in order to achieve this design, and obviously I need to style them as well. Sir, on where you create an account for Webflow? Mhm. Yes, you have to create an account on webflow.com. Okay. Then you will go to the dashboard and वहाँ से आपको create site का एक बटन मिलेगा और वहाँ से आप साइट क्रिएट कर सकते हैं। You can build 2 projects on free version, और आपके पास 2 पेजेस के ऑप्शन होते हैं ऑन फ्री वर्जन। अगर फिर आपको आप स्केल करना है या आपको उसमें .com का डोमेन ऐड करना है तो उसके लिए फिर पेड प्लान लेने पड़ते हैं। बट अगर आपके एक बेसिक, जैसे मैंने ये साइट बनाई है तो मैंने इस पर कोई चीज़ परचेज नहीं की हुई है, ये फ्री वर्जन में चल रही है। Okay. अगर मुझे इसमें .com डोमेन लगाना होगा तो मुझे फिर साइट प्लान खरीदना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो आप सब भी प्लीज़ पानी पिएं, कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो शुड वी स्टार्ट? ओके। Yes. अच्छा, नेविगेशन इज़ वेरी टेक्निकल, और इसमें काफ़ी चीज़ें CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, तो वी विल बिल्ड दैट एट द एंड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द हीरो सेक्शन फर्स्ट, जो कि हमारा मेन सेक्शन है। हम इसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो हर पेज के ऊपर आप देखेंगे, जब भी आप पेज क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक बॉडी टैग होगा। बॉडी टैग क्या होता है कि जिसकी आपके HTML बेसिकली कुछ मार्कअप होते हैं डिफ़ॉल्ट, वो उसमें HTML हेड बॉडी जो है वो जब होता है तभी आपका HTML पेज जो है वो बनता है। तो जो भी एलिमेंट आपके बॉडी टैग में डले हुए होते हैं उसी से पेज बिल्ड होकर सामने नज़र आता है। तो बॉडी टैग में हम क्या करते हैं यूजुअली, हम जो हमारी बेसिक स्टाइलिंग है वेबसाइट की, हम उसको जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी नो कि अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि वी हैव वन सिंगुलर फॉन्ट ऑन द वेबसाइट विच इज़ सोरा, तो अब वो गूगल फॉन्ट है, तो लेट्स जस्ट ऐड दैट। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और साथ साथ बताता चलूँ कि जो भी चीज़ ऑरेंज में नज़र आती है तो इसका मतलब है कि वो इनहेरिट होके आ रही है पिछले कहीं से, कि वो कहीं डिफ़ॉल्ट स्टाइल में या इससे पहले को जो भी स्टाइलिंग हुई है इस एलिमेंट की, तो वो कहीं से होके आ रही है। तो वंस यू क्लिक ऑन इट तो वो आपको बता देगा कि कहाँ से उठ के आ रही है। तो जितने भी ये पिंक टैग्स होते हैं ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट HTML टैग्स है, और डिफ़ॉल्ट HTML टैग्स क्या है कि वेबफ्लो के अपनी एक इसकी जो है वो स्टाइलिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आप उसको सेलेक्ट करके चाहें तो इस पे कर लें। रिकमेंडेड तो यही है कि आप यहाँ पे आके करें, बट अगर आप नहीं भी करते और आप इसमें अभी कोई भी नाम नहीं लिखते सेलेक्टर पे, ये बेसिक क्लास होती है, कैन बी एनीथिंग, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप बेहतर है कि जो चीज़ आप बना रहे हो आप उसी के अराउंड उसका जो है नाम दें। तो अब फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने जैसे ही अब देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी चेंज करने के लिए, तो ये वेबफ्लो ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्रिएट क्लासेस। अगर आप नहीं खुद भी नहीं बना रहे तो वो आपके बिहाफ पे बना देता है, और उसको जो भी एलिमेंट का नाम होता है वो एलिमेंट का नाम दे देता है, एंड ऑब्वियसली यू कैन रीनेम दैट आफ्टर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास वो फॉन्ट नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट, तो आई विल हैव एन ऑप्शन टू ऐड अ फॉन्ट। तो मैं जब ऐड फॉन्ट करता हूँ तो वो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में लेके जाता है, जो कि मैं बाहर से भी जा सकता हूँ और फॉन्ट्स के सेक्शन में जा सकता हूँ।
और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गूगल फॉन्ट कॉल कर लूँ, मैं अपना कोई कस्टम फॉन्ट अपलोड कर लूँ, और अगर मेरे पास एडोबी फॉन्ट्स का एक्सेस है तो उसका API टोकन डाल के मैं वो फॉन्ट भी फैच कर सकता हूँ। तो एज आई नो कि मेरे पास जो फॉन्ट है वो सोरा है, और अभी मैं सारे फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारे फॉन्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप सिर्फ वो सेलेक्ट करें जो आपके डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं। आई थिंक मेरे पास जो है वो 300 से 800 तक यूज़ हो रहे हैं, बट लेकिन 2 ही रहते हैं। तो इट विल हेल्प यू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट, जितना कम लोड टाइम लगे उतना अच्छा है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो डिस्क्लेमर ऑफ GDPR कंप्लायंस। इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड कि अगर आप गूगल फॉन्ट कर रहे हैं तो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको अपलोड करें, क्योंकि GDPR के मुताबिक कुछ जगहों पे IP एड्रेसेस हैं जो कि गूगल सर्वर फैच करता है, जो कि कंप्लाइंस से मैच नहीं हो रहे। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप गूगल फॉन्ट डाउनलोड करके अपलोड करें, बजाय कि आप गूगल फॉन्ट से ही फैच कर रहे हो। अच्छा, तो लेट्स जंप बैक टू द डिज़ाइनर व्यू। ओके, सो हमारा फॉन्ट आ जाना चाहिए। यस, फॉन्ट यहाँ पे आ गया, एंड देन वी जस्ट पिक इट अप, वी जस्ट कीप इट नॉर्मल। और फॉन्ट साइज हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि 16 पिक्सल्स जो है वो एक अच्छा स्टार्टिंग फॉन्ट है, बेस फॉन्ट है। और यूनिट जो है, लाइन हाइट है, उसको हम 1 लिख के विदाउट यूनिट करेंगे। ये बेसिकली हेल्प करता है हमें, हम जब टेक्स्ट वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो हमारी लाइन हाइट जो है वो प्रॉपर रहती है इसमें व्हेन वी पुट नो यूनिट इनसाइड इट। अच्छा, और हम फॉन्ट, अच्छा मेनली हम जब हम साइट देखते हैं तो मेनली हमारी साइट जो है वो डार्क मोड पे है, बस 2 ही सेक्शन है जो वाइट है। तो आई विल चूज़ द बैकग्राउंड कलर in black, and I will keep the type color white. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। साइजिंग में आपको पैडिंग मार्जिन मिल जाती है, साइज में आपको विड्थ हाइट मिल जाती है। पोजीशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। टाइपोग्राफी आ गई आपकी, आपका बैकग्राउंड आ गया, बॉर्डर आ गया है, और फिर एंड में इफेक्ट्स आते हैं, जैसे ड्रॉप शेडो वगैरह या कुछ तरह की चीज़ आपको करनी हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट ऐड अप अच्छा, सेक्शन क्या होता है, हम डिव से स्टार्ट करें या सेक्शन से? तो सेक्शन बेसिकली कह लें कि उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, कि जैसे कि ये एक फ्रेम है, ये एक सेक्शन है, तो हम जो भी सेक्शन स्टार्ट और एंड हो रहा है तो वी कंसिडर इट एज सेक्शन। एक पेज, एक फोल्ड भी कह सकते हैं इसको। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सेक्शन ही करें डालें, हम डिव को भी डाल के उसको स्टाइल कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू यूज़ सेक्शन। तो जैसे हम सेक्शन डालते हैं तो उसमें पहले तो हम चेक कर लेना चाहिए कोई इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ तो नहीं आ रही। इसमें नहीं आ रही तो, और जो भी चीज़ आ रही है वो बॉडी से उठ के आ रही है, जो कि हमने अभी एक क्लास बना दी है। सेक्शन आया, सेक्शन में वी विल सी कि जो ये मेरा लेआउट है, अगर मैं इसको देखूं तो मैं चाहूँगा कि ये लेआउट मेरा 100% हाइट पे नज़र आए। 100% हाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी स्क्रीन पे साइट खुले, मेरा ये फोल्ड जो है ना वो 100% विजिबल हो, एज इन के उसको स्क्रॉल ना करना पड़े, जितना भी विजिबल एरिया है। तो वैसे तो मैं चाहूँ तो एक इसकी हाइट, जैसे ये 1065 दे रहा है, तो मैं सेक्शन की हाइट यहाँ पे डाल सकता हूँ 1065। बट वो प्रॉब्लम क्या होगी, जब मोबाइल पे खुलेगा या डिफरेंट डिवाइसेस में खुलेगा तो 1065 की जो हाइट है वो बहुत डिफरेंट होगी। इवन मेरे ब्राउज़र में जो हाइट है वो डिफरेंट है होगी, जो कि फिग्मा डिज़ाइन में हाइट है उससे। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप इसमें एक तो मिनिमम हाइट का यूज़ करें। मिनिमम हाइट क्या करती है कि मिनिमम हाइट बेसिकली उसको एक मिनिमम हाइट देती है उस सेक्शन को, और अगर आपका कंटेंट एक्सपेंड करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अडेप्ट हो जाती है। अगर तो आप फिक्स हाइट दे देंगे
तो वो 100 जो उसकी विजिबल एरिया जब जितना वो नज़र आएगा वो उतने ही पे ही स्ट्रिक्ट करेगा और बाकी कंटेंट को बाहर धक्का मिल जाएगा और वो सेक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा और कंटेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा आपका। तो इन दिस केस वी विल डू 100 और ये जैसे मैं यूनिट पे क्लिक करता हूँ तो पिक्सल्स हैं, परसेंटेज है। अच्छा, जो भी बिगिनर्स हैं आप बिल्कुल इसकी परवाह नहीं कीजिएगा। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटिंग फॉर यू इन द स्टार्ट। आप पहले पिक्सल्स में ही बना लें एंड देन बाद में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा जो भी यूनिट आपको समझ में आए। बट आई वुड रिकमेंड आप वर्टिकल हाइट जो है वो यूज़ करें इसके लिए। तो जैसे ही मैं 100 इसको करता हूँ तो ये बॉक्स मेरा बड़ा हो गया और जितनी विजिबल एरिया है उस विजिबल एरिया में ये फैल गया। अच्छा, अब मैं दोबारा अपनी साइट को देखता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे वो दिखाया था कि अब मुझे 2 बॉक्सेस लेने हैं ताकि मैं इसमें दोनों एलिमेंट्स अपने जो है वो टेक्स्ट का, बटन का और एक और हेडिंग टेक्स्ट का एलिमेंट डाल सकूँ। तो आई विल ऐड अप div ओवर हियर। अच्छा, बिफोर एडिंग दैट कंटेनर को भी समझाता चलूँ। कंटेनर क्या करता है? तो जैसे ही मैं कंटेनर ऐड करता हूँ तो कंटेनर बेसिकली आपकी मैक्स विड्थ डिफाइन करता है लेआउट की। अब क्या हो रहा है कि जैसे ये बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया तो उसमें ऐड हुई हुई है 940 की विड्थ और मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ तो ये इसकी मैक्स विड्थ चेंज हो गई और छोटे उस पर जाता हूँ तो वहाँ पे ख़त्म ही कर दिए इन्होंने। तो ये जो भी आपका डिज़ाइन होता है आपने उसको देखना होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मेरा डिज़ाइन मेनली एज टू एज जा रहा है और थोड़ी सी स्पेसिंग है। कुछ एलिमेंट्स तो बिल्कुल एज टू एज हैं बट लेकिन कुछ एलिमेंट्स में जो है ना कुछ पिक्सल्स का स्पेस है लेफ़्ट राइट। तो मैं चाहूँगा कि मेरी साइट जो है वो फ्लूइड रहे बजाय कि फिक्स विड्थ। तो आई विल जस्ट गिव इट 95% क्लास। तो 95% जिस भी स्क्रीन साइज पे होगा ये एंड में थोड़ा सा गैप रखेगा और 95% पे मेरे ऑब्जेक्ट्स जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको रोकेगा, वो उससे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, हमारे बॉडी ऐड की, हमने सेक्शन ऐड किया, हमने कंटेनर ऐड किया। अब यूजुअली जितने भी हम सेक्शन बना रहे होंगे वो इसी उस पर बेस कर रहे होंगे। कुछ में कंटेनर यूज़ नहीं करेंगे बाकी, बट सेक्शन जो है वो हर जगह हम यूज़ करेंगे। कंटेनर की भी देखें तो उसने फ़ौरन से क्लास बना दी जैसे ही मैंने इस पर राइट किया। तो अब मैं जब भी रिपीट करूँगा तो मैं ये क्लास ज़रूर लगाऊंगा। अब चाहूँ तो मैं ये दोनों काम div पे भी कर सकता हूँ कि मैं div ड्रॉप करूँ और div को बोलूँ कि भाई आप जो है वो सेक्शन की क्लास ले लो, तो ये सेक्शन बन जाएगा। अगर ये कंटेनर करना है तो मैं इसमें कंटेनर की क्लास दे दूँगा तो ये सेक्शन मेरा कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, तो Sorry, Zaira, I'm just cutting off. Is the screen like visible to everyone, or like would you want Zaira to zoom in a little bit? Zaira, is it possible to like zoom in a little bit because thoda font? zoom in a little bit. Okay. It's fine. Okay, it's fine. Someone has said it's fine, so that's fine. Okay, we can continue. अच्छा, ये मुझे ऑप्शन कोई दे नहीं रहा वेब फ्लो Okay, वही ठीक जूम है। करने का। Okay. अच्छा, तो कंटेनर पे आ गए एंड देन जस्ट क्विकली ड्रॉप डाउन। हम div लेंगे, div भी ऐड हो गई। अच्छा, हम चाहें तो इन चीज़ों को यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और हम जब ड्रॉप कर रहे हो तो भी हम एलिमेंट को पकड़ के उस एरिया पे, उस लेयर पे लाके ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने div ऐड की और div में मुझे टाइटल नज़र आ रहा है और बटन नज़र आ रहा है। तो आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉप अ टाइटल और अ बटन। तो मैं हेडिंग ड्रॉप करूँगा इसके अंदर और मैं इसके अंदर एक बटन ड्रॉप कर दूँगा। हेडिंग में क्विकली मैं जाके टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दूँगा और बटन का भी टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं अगर देखूँ तो सबसे पहले तो मेरे जो इस वाले एलिमेंट की एक विड्थ है जो कि डिफाइन है, तो मैं उसको एक विड्थ दे देता हूँ। विड्थ आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें ऑब्जेक्ट पे तो आपको यहाँ पे बता देगा 548 पिक्सल्स है। अब चाहें तो डायरेक्टली 548 पिक्सल्स लिख दें, बट एक और यूनिट है जो कि मैं समझाना चाहूँगा जिन लोगों को आइडिया है
पहले तो मैं इसका नाम दे दूँ, आई थिंक इंट्रो टेक्स्ट वुड बी गुड, मे बी। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको मैक्स विड्थ दे दूंगा मैं 50 CH। CH क्या होता है? CH बेसिकली कैरेक्टर हाइट होती है, तो इसका मतलब है कि 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं इस स्पेस के अंदर। वैसे तो आप पिक्सल्स और परसेंटेज और VW इन सब पे भी विड्थ दे सकते हैं, बट आजकल ये ट्रेंडिंग है, तो और ये काफ़ी मतलब इजी भी है उसको। अगर आपको कैरेक्टर लिमिट पता हो कि कितने कैरेक्टर्स आपने दिखाने हैं, तो आप वो कैरेक्टर उतने रख के CH डाल दें तो वो उतने उस पर आ जाता है। अच्छा, साथ ही साथ लेट मी, एक जो पार्ट हम मिस कर गए फिग्मा पे वो था एक्सपोर्टिंग। तो अब मुझे एसेट्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले तो देखूँगा कि क्या क्या एसेट्स हैं जो मुझे एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो मुझे नज़र आया लोगो एक्सपोर्ट करना है, पीछे जो हीरो इमेज है वो एक्सपोर्ट करनी है, ये जो व्हील एक बना हुआ है वो एक्सपोर्ट करना है, और फिर जो है ये 3 इमेजेस हैं ये एक्सपोर्ट करनी है, एंड देन फिर ये स्पेक्स की एक इमेज है ये एक्सपोर्ट करनी है, और फिर एक ये फुटर वाला लोगो है ये एक्सपोर्ट करना है। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट कि वो मैं एक्चुअल उसकी लेयर तक पहुँच जाऊँ, और मैं यहाँ पे बेसिकली एक्सपोर्ट का बटन दबाऊँगा, और यहाँ पे मुझे ये मल्टीपल ऑप्शन देगा। जब भी आप लोगो एक्सपोर्ट करें और आपको पता है कि अगर लोगो वेक्टर है तो ट्राई टू एक्सपोर्टिंग इट इन SVG, क्योंकि SVG जो है वो वेक्टर ग्राफिक होती है और वो किसी भी स्क्रीन पे जो है वो पिक्सलेट नहीं होती। वरना PNG भी खैर आपके लिए चलेगा अगर आपके पास वो लेयर जो है वो रेस्टराइज है। तो फॉर एग्जांपल हमने SVG किया और हमने एक्सपोर्ट का बटन दबा देना है, वो आपके डाउनलोड के फोल्डर में सेव हो जाएगा। सेम गोज़ विद बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक किया, उसका प्रीव्यू भी आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं क्या पार्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। वैसे तो इमेज बड़ी है, लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेम के अंदर रखी हुई है तो वो सिर्फ उतना ही पार्ट आपको क्रॉप करके एक्सपोर्ट करने को ऑप्शन दे रहा है। अगर मुझे ये पूरी इमेज चाहिए तो मैं चाहूँ तो उसको बाहर निकाल के यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ, तो ये देखें फ़र्क आ गया इस पर एक्सपोर्ट पे और इसके एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल PNG या PNG क्योंकि अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, JPG में कंप्रेशन ज़रा ज़्यादा लग जाता है, तो मैं PNG में एक्सपोर्ट करूँगा। और जैसे PNG एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे ड्राइव फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में ये एडअप हो जाएगा। अगर मैं जाऊँ तो ये इस तरह से फाइल सेव हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हुई है, तो मैंने जैसे आप एक्सपोर्ट करें उसको प्लीज़ नाम ज़रूर दे दें ताकि वो याद भी रहे कि वो किस सेक्शन का था, एंड आप फिर जाके अपने मीडिया में आई विल जस्ट अपलोड, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड जस्ट अपलोड देम। तो हमारे एसेट्स जो हैं वो सारे यहाँ पे आ गए, और अब हम सेक्शन को बैकग्राउंड दे देते हैं। तो मैं सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड का ऑप्शन है, और इधर आई विल ऐड अ बैकग्राउंड। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है, हम ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, हम रेडियल ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, हम ओपेसिटी टेंट एक डाल सकते हैं। हमारा काम फ़िलहाल इमेज लगाने का है, तो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और hero.png डाल देंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टिप फॉर ऑप्टिमाइजिंग, जब भी आप एक्सपोर्ट करें सारे एसेट्स को, मेक श्योर आप उसको टाइनी PNG पे जाके कंप्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट फिग्मा से होता है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पे होता है, तो उसके अंदर फिर भी मार्जिन होता है उसको कंप्रेस करने का, तो ये हेल्प करेगा मज़ीद साइट का लोड टाइम मैनेज करने में। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप इसको अपनी आदत बना लें। तो कंप्रेस करके फिर वो आप इधर आके अपलोड करें, एंड देन फिर आपने जैसे ये ऑप्शन में डाला है तो आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। कस्टम आप उसकी विड्थ हाइट दे सकते हैं। मेनली ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है वो कवर और कंटेन यूज़ हो रहा होता है। कंटेन करेंगे तो जितनी भी इमेज है वो सारी अंदर आ जाएगी, इस एरिया के अंदर रखेगा उसको। मोबाइल वर्जन पे ही ज़्यादा काम आता है। कवर जो है वो हमारी जितनी भी लार्जर स्क्रीन है उसके लिए होता है कि जितना भी एरिया मिल रहा है हमारी इमेज को उस एरिया के हिसाब से एक्सपेंड कर दें। फिर पोजीशनिंग है कि पोजीशन इसको सेंटर से करना है, मिड से करना है, बॉटम से करना है। हम इसको टॉप से ही रहने देंगे।
और इसमें फिर रिपीट का ऑप्शन है कि आप उसको टाइल करना है। अभी ये टाइल वर्टिकल भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उसको 50% करूं तो ये देखें तो अभी टाइल ऊपर हॉरिजॉन्टली भी हो रही है, वर्टिकली भी हो रही है। अब मैं चाहूँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर दूँ, मैं चाहूँ तो फिर वर्टिकल रखूँ, बट इन दिस केस हमें टाइलिंग नहीं चाहिए, हमें कवर इमेज चाहिए। और फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड ये क्या करता है, ये थोड़ा सा पैरेललाइज इफेक्ट बनाता है, जो कि अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज वहीं पे है बट कंटेंट मूव हो रहा है। तो ये फिक्स की प्रॉपर्टी से आप थोड़ा सा एक पैरेललाइज इफेक्ट बना सकते हैं। ओके, सो वी विल कीप इट फिक्स्ड। और हमारे सेक्शन पे जो है इमेज आ चुका है। अब हम अपने फ़ॉन्ट को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में देखता हूँ तो मेरे पास 32 पिक्सेल्स रेगुलर और वाइट कलर में है फ़ॉन्ट। तो मैं यहाँ आके टाइपोग्राफी में जाके, अच्छा मैंने क्योंकि यहाँ पे हेडिंग 1 ऐड की है तो मैं चाहूँ तो सारी हेडिंग 1 को सिलेक्ट HTML टैग सेलेक्ट करके उसको स्टाइल कर दूँ, तो जितने भी आगे से मैं H1 डालूंगा वो ऑटोमेटिकली बेस स्टाइलिंग पे आ जाएंगे। बट क्योंकि ये एज सच दोबारा रिपीट नहीं हो रहा मेरे पास ये वाला स्टाइल, मे बी यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हम इसको, बट हाँ फॉन्ट वेट डिफरेंट है तो एक तरह से ये यूज़ दोबारा नहीं हो रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल कुछ भी नाम दे देता हूँ, इंट्रो हेडिंग दे देता हूँ। और इंट्रो हेडिंग दे के आई विल फर्स्ट, और फॉन्ट वेट मैंने नॉर्मल रखा है, फॉन्ट पिक्सेल्स में रख दिया है। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो आई मेंशन बिफोर कि आप पिक्सेल्स पे ही रहने दें लेआउट को, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस उसमें जाना चाहते हैं तो एक REM जो है ना एक यूनिट है जो कि पिक्सेल्स को बेसिकली रिकमेंडेड है आपके जितने भी वेबसाइट्स हैं उसमें REM का यूनिट टेक्स्ट में ख़ास तौर पे यूज़ करने के लिए। वो हेल्प क्या करता है कि आपके जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस में उनकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, एक्सेसिबिलिटी में ये काउंट होता है। तो कुछ को जो है ना फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े चाहिए होते हैं तो वो अपने ब्राउज़र पे जाके उसको सेट कर देते हैं फ़ॉन्ट्स को। तो उनको जब आप पिक्सेल्स यूज़ कर लेते हैं तो वो बेसिकली उनकी सेटिंग से मैच नहीं करते और वो उतने ही पिक्सेल्स में रहते हैं जो आपने सेट किया होता है। बट अगर उन्होंने अपने क्रोम के ब्राउज़र में जाके लार्ज फ़ॉन्ट सेटिंग्स की हुई है तो जब हम REM यूज़ करते हैं तो वो उसी के रेशो के हिसाब से जो है ना फ़ॉन्ट को बड़ा करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है बट इट्स अ गुड थिंग अगर आप ऑलरेडी वेबसाइट बनाते हैं तो आप इस REM यूनिट, और अच्छा इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि इस तरह की वेबसाइट हैं जो आप कन्वर्टर्स हैं वो आप यूज़ कर लें ताकि आपका काम आसान हो। इन दिस केस हम 32 पिक्सेल्स को अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 रैम बनता है। अच्छा ये बनता किससे, बेस फॉन्ट से बनता है। जो ऐसे हमने बॉडी में 16 पिक्सेल्स रखा था, 16 पिक्सेल्स इज इक्वल टू 1 रैम। तो बेहतर है कि आप 16 पिक्सल, अगर आप 14 पिक्सल रखते हैं तो फिर आपको 1 रैम इतना बनता, तो 16 पिक्सल के हिसाब से रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 32 पिक्सल्स का 2 रैम बनता है तो मैं इसको 2 रैम दे देता हूँ। और यूनिट लाइन हाइट का मैंने बताया था कि हम उसको यूनिट इसका 1 रख देंगे। 1 काफ़ी क्लोज हो रहा है तो 1.5 कर देते हैं। यूजुअली यूनिट जो है वो आई थिंक 1.5 से बेहतर रहेगा, तो बॉडी में भी मुझे जाके 1.5 कर देना चाहिए। वो एक अच्छा यूनिट है लाइन हाइट को मेंटेन करने के लिए। एंड देन ऑब्वियसली आप अपने डिज़ाइन को भी मैच करके देख सकते हैं कि क्या लाइन हाइट है। फिलहाल हम इसको यहीं पे रखते हैं। वाइट हमारा फॉन्ट कलर है। अच्छा अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा फ़र्क मुझे फिर भी इसके टाइप फॉन्ट वेट में फ़ील हो रहा है, तो आई थिंक नॉर्मल से हमें थोड़ा और नीचे जाना चाहिए। लाइट वर्जन वुड बी अ बिट क्लोज। ठीक है, अच्छा ये हो गया इंट्रो हेडिंग। जो हमने हेडिंग H2, अच्छा साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी हम H1 हम यूज़ कर रहे हैं। गूगल रिकमेंड्स कि आपके
जो पेज पे जो है ना H1 जो हेडिंग का टैग है, हेडिंग के आपके 6 टैग्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आपका जो पेज का जो भी मेन टाइटल है वो H1 में होना चाहिए और H1 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपका मेन टाइटल है वेबसाइट का वो आप H1 एक ही रखें, एंड देन जितने भी नीचे टाइटल्स आ रहे होंगे उनको H2 H3 के ऊपर ही रखें। तो हमारा क्योंकि ये मेन टाइटल है तो हम इसको H1 पे रखेंगे। और अगर मैं देखूं तो ये डिफ़ॉल्ट HTML से कुछ पैडिंग स्पेसिंग ले रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको नीचे वाली भले रहने देता हूँ, ऊपर वाली मुझे नहीं चाहिए। और मैं बटन को भी जो है वो स्टाइल कर देता हूँ। तो बटन में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास रेडियस है 60 पिक्सल्स का, बैकग्राउंड कलर है वाइट और फॉन्ट कलर जो है वो है ब्लैक है और 16 पिक्सल्स फॉन्ट है। तो मैं क्विकली इसको अडेप्ट करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो उसको क्लास दे देता हूँ, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अज्यूम के आप डायरेक्टली इसको छेड़ना शुरू हो जाते हैं। तो 16 पिक्सल्स क्या बनता है जी, 16 पिक्सल 1 रैम बन रहा था, यस। तो मैं 16 पिक्सल्स को 1 रैम बोल दूंगा। बटन की क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, 1.5 मेरे लिए ठीक है। नॉर्मल फ़ॉन्ट की जगह लाइट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट मेरा ब्लैक रहेगा क्योंकि बटन मेरा वाइट है, तो बैकग्राउंड में इसका वाइट कर देता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास बॉर्डर रेडियस है क्योंकि मुझे इसको सर्कुलर बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ या डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ 60 पिक्सल्स की। यहाँ पे भी आप REM यूज़ कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग मच फर्दर। यहाँ पे हम पिक्सल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास पैडिंग मुझे नज़र आ रही है 20 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स टॉप और बॉटम। तो मैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल्स, अगर आप कीबोर्ड पे ऑल्टर दबा के एंटर मारेंगे तो लेफ़्ट राइट दोनों ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, वरना 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा। टॉप एंड बॉटम आई थिंक 8 पिक्सल्स, ये दोनों तरफ ऑल्टर दबा के एंटर किया तो दोनों तरफ 8 पिक्सल हो गया। तो ये हमारा बटन बन गया। अब हम इसमें अपने जो टैगलाइन है चलें वो डालते हैं। तो ये एक डिप हो गई हमारी। अब हम एक और डिप ऐड करेंगे, कंटेनर को पकड़ लेते हैं ताकि कंटेनर अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इंट्रो टेक्स्ट के अंदर ऐड होगी, हमें इंट्रो टेक्स्ट के अंदर ऐड नहीं करना, हमें कंटेनर के अंदर ऐड करना है। So let's just add another div and let's just add another text. अब हम हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मल टेक्स्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम लिख देंगे, चलें पहले को हम क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम रखते हैं सुपर टेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है। और इसकी डिफ को हम नाम दे देते हैं, और से चलें ही लिख देते हैं फिलहाल। हाँ, सुपर टेक्स्ट को अगर हम मैच करें डिज़ाइन से तो ये 230 पिक्सल्स है। 230 पिक्सल्स का चलें पहले 230 पिक्सल्स डाल के देखते हैं क्या बनता है। ओके ठीक है, सेंटर अलाइन कर सकते हैं इसको और हम फॉन्ट वाइट भी कर लेते हैं और हम बॉडी वेट इसका आई थिंक नॉर्मल ही ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये भी यूनिट में आती है। वैसे तो पिक्सल्स यूज़ करें कोई मसला नहीं है इनिशियल उसमें, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे, तो आपको हर डिवाइस के हिसाब से अपना पिक्सल्स को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और यूनिट काम आता है। मुझे पता है कि ये टेक्स्ट जो है वो एज टू एज रखना है मैंने, मतलब उससे बड़ा नहीं होना, और तो मैं जो भी स्क्रीन साइज़ होगा मैं चाहूँगा कि ये टेक्स्ट एज टू एज ही रहे। तो मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ का इस्तेमाल करूँगा, जैसे हमने व्यू पोर्ट हाइट सेक्शन की हाइट पे यूज़ की थी कि जितना विजिबल एरिया है उतने एरिया पे वो हाइट ले ले, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 10 व्यू पोर्ट विड्थ करता हूँ।
आई थिंक 10 से बड़ी करनी पड़ेगी, ये तो इसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो लेट्स गो फॉर 18। आई थिंक 18 वुड बी इनफ। और अगर अब मैं जब इसको रिस्पॉन्सिव पे देखता हूँ तो ये स्क्रीन की विजिबल साइज़ के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर रहा है, तो मुझे मज़ीद इसमें जो है वो उसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो है वो ये टेक्स्ट भी हो गया। अब हमें थोड़ी सी स्पेसिंग में काम करना है। चाहें तो इसको टॉप मार्जिन दे दें, जो हमने चले वाली डिव ली है, इसको टॉप मार्जिन दे के हम नीचे कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे ऊपर भी स्पेसिंग है तो पहले हम ऊपर वाली स्पेसिंग, या बल्कि हम थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। चलें एक डिव ले लेते हैं, उस डिव का हम नाम रखते हैं कुछ भी रख देते हैं, हीरो स्पेसिंग रख देते हैं नाम, ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारी डिव, अच्छा ये डिव देखें तो अंदर ऐड हो गई है, मुझे इसको बाहर रखना है कंटेनर के बाद, तो मैंने उसको ड्रैग करके ऊपर ले गया हूँ, और ये हमारी जो दोनों डिव हैं वो उसकी चाइल्ड बन जाएगी। तो मैं ये दोनों डिव को अंदर ले जाके उसका चाइल्ड बना दिया। अब मैं सबसे पहले तो उसकी टॉप पैडिंग ले लेता हूँ। टॉप पैडिंग में मैं जब इसको क्लिक करके ऑल्ट माउस का आगे लेके जाता हूँ तो ये मुझे स्पेसिंग बताता है, तो ये तकरीबन 136 पिक्सल्स बता रहा है टॉप से। तो मैं यहाँ पे भी रैम का इस्तेमाल करता हूँ, 136 पिक्सल जो है वो 8.5 रैम बनता है, तो मैं टॉप मार्जिन जो है वो 1.5 रैम कर लेता हूँ। और इसको कोई मिनिमम हाइट दे देता हूँ। मिनिमम हाइट तकरीबन 900 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेट्स जस्ट गिव, बल्कि हम VH का इस्तेमाल करते हैं, तो VH का इस्तेमाल करते हुए हम इसको 85 पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं, VH, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें फ्लैक्स का इस्तेमाल करना है। तो जैसे डिस्प्ले में अभी तक हमने फ्लैक्स को नहीं देखा था, तो हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी में लेआउट के ऑप्शन होता है। उस लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे जितने भी डिव्स और HTML एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल होता है, बट हम चाहें तो उसको किसी भी अंदाज में जो है वो पेश कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ हाइड करनी है तो हम डायरेक्टली डिस्प्ले में हाइड का बटन दबाएंगे तो वो सेक्शन हाइड हो जाएगा, बट डिस्प्ले ब्लॉक में हम फ्लैक्स समझते हैं। तो जैसे ही हम फ्लैक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ मज़ीद डायरेक्शन आ जाती हैं। जो लोग फिग्मा पे ऑटो लेआउट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये तकरीबन वही चीज़ है, और CSS में जो है वो फ्लैक्स कहलाती है, फिग्मा में उसको ऑटो लेआउट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन सिमिलर है। तो अब इसमें देखे जाए तो इसमें 2 डायरेक्शन हमें मिलती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल पे कंटेंट को करना है या फिर वर्टिकल पे करना है। हमें अभी वर्टिकल की रिक्वायरमेंट है तो हम वर्टिकल पे रखेंगे। और इसमें फ्लैक्स में होता क्या है कि आप जितने भी इसके अंदर इनसाइड जो चाइल्ड्स हैं उसको आप इधर से ही मेन डिप से ही जो है ना रहते हुए अलाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, मुझे सेंटर करना है तो जितने भी इसके अंदर चाइल्ड हैं वो ऑटोमेटिकली अपने इस पेरेंट डिप से अपनी स्टाइलिंग को ले रहे हैं, और वो मिडिल अलाइन करना है, बॉटम अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, तो मैं जस्टिफाई और अलाइन से ये सारे काम इजीली कर सकता हूँ। तो अभी खैर हमें अलाइन की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई की भी। जस्टिफाई में हम यूज़ करेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगा कि इनके दरमियान में जो भी गैप है उन दोनों चाइल्ड्स को जो है वो पुश कर देगा अपने से दूर तक। जब तक इनमें स्पेसिंग रहेगी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर रहेंगे। हम जो अपनी नेविगेशन जब बनाएंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर रखना है। चाहे तो पिक्सल से भी काम कर सकते हैं, बट क्योंकि डिवाइसेस बहुत हो गई हैं तो पिक्सल्स एक हद तक किसी एक डिवाइस पे काम करता है। आपको हर डिवाइस पे अगर ब्रेक पॉइंट्स और मीडिया क्वेरीज बनाने लग जाएं तो आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इट्स बेटर कि आप फ्लैक्स में स्पेस बिटवीन यूज़ कर लें। अब हाइट जो भी हम इसकी कम भी करेंगे तो वो अपनी स्पेसिंग खुद ही मैनेज करेगा, ठीक है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक तरह से हीरो सेक्शन तकरीबन कंप्लीट है। हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन का सेक्शन या इन्फो सेक्शन। तो लेट्स ऐड अप अनदर सेक्शन। सेक्शन के अंदर सेक्शन नहीं आ सकता, तो हमें बॉडी सेलेक्ट करके फिर सेक्शन ऐड करना होगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, चाहें तो सेक्शन की क्लास, अब क्योंकि ये हमारा सेक्शन अब VH हमें एक ही सेक्शन पे चाहिए, तो हम इसको रीनेम करके सेक्शन हीरो बोल देते हैं। और जो नीचे वाला सेक्शन है, हम क्योंकि मैंने डिज़ाइन में रखा था कि हमारे तकरीबन टॉप से जो है वो 100 पिक्सल्स स्पेसिंग है, तो मैं इस पे 100 पिक्सल्स को कन्वर्ट करता हूँ पहले तो REM में। मुझे 6.25 REM मिला, और मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है वो इनसाइड होती है, और जो मार्जिन होती है वो आउटसाइड होती है। तो मैंने इसको टॉप से 100 पिक्सल्स जो कि REM में कन्वर्ट करके मैंने दिया, और ये सेक्शन वाइट कलर में है, तो मैं इसको वाइट कलर देता हूँ। और जो बॉडी कॉपी है वो मोस्टली ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, इस सेक्शन को भी मैं नाम मैं बाद में देता हूँ, अभी हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो अब जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 डिव्स हैं जो कि मुझे लेनी है। उन 5 डिव्स के अंदर मज़ीद कुछ डिव्स हैं जिसमें मुझे कंटेंट को अपने ऐड करना है। तो सबसे पहले तो मैं स्टैट्स वाली डिव को ऐड करता हूँ। तो आई विल जस्ट, और उससे भी पहले मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि इसके अंदर कंटेनर यूज़ हो रहा है। तो कंटेनर एज ए मैंशन कि वो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो उस कंटेनर की बिट से बाहर ना निकले। बट इसमें 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कंटेनर के बाहर हैं, तो मुझे इस पार्ट के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। ये पार्ट विदाउट कंटेनर डायरेक्ट सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो मैं सेक्शन के अंदर पहले कंटेनर ले लेता हूँ, और मैं इस कंटेनर के साथ इसको पहले क्लास दे देता हूँ कि हमने कंटेनर की क्लास बनाई थी जिसमें हमने 95% मेंशन किया था वेट को, तो वो आ जाता है। और मैं इसमें डिव डाल दी। डिव को नाम मैं दे देता हूँ स्टैट्स, और स्टैट्स में मेरे पास आ रहा है नंबर आ रहा है, और एक इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, और ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो मैं काम ही करता हूँ, स्टैट्स एक उसका मेन कंटेनर हो गया। अब मैं इसको फ्लैक्स या ग्रिड से जो है वो अलाइन करूँगा। तो लेट्स मी जस्ट ऐड अनदर div and call it stats item में भी ये रिपीट होगा। इस आइटम के अंदर जो है मैं टेक्स्ट डालता हूँ, 2 टेक्स्ट ब्लॉक डाल देता हूँ। एक में हमारा नंबर आ जाएगा और एक में हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर कॉपी पेस्ट कर लेता है और वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लेता है। और स्टैट्स आइटम को, या हम इसको भी क्लास दे देते हैं जैसे कि लेट्स कॉल इट अ स्टैट्स नंबर। नंबर, और इस नंबर की हम फॉन्ट साइज देख लेते हैं। 128 पिक्सल्स है, सेमी बोल्ड है, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 128 पिक्सल्स 8 रैम के बराबर होता है, तो हम इसको 8 रैम दे देते हैं। ओके, और सेमी बोल्ड है तो आई थिंक मीडियम
भी हमारा सेमी बोल्ड तक बन रहा होगा। और हमारे पास नीचे जो है वो स्टैट्स डिस्क्रिप्शन है। अब आप देखें तो मैंने नाम देना शुरू कर दिए हैं, पहले मैं नहीं दे रहा था, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप नाम देते रहें तो अच्छी बात है, और फिर उसको स्टाइल कर लें। 18 pixels would be 1.125 RAM। तो मेरे जो ये डिस्क्रिप्शन है वो 1.25 RAM है। और आई थिंक कुछ इसकी विजिबिलिटी का भी फ़र्क है। वैसे तो ब्लैक है, ओके। लेयर 75% पे है, 75% लेस इसका जो है वो विजिबिलिटी है कलर की। तो ये मैं कैसे कर पाऊँगा? तो मेरे पास ऑप्शन होता है कलर पे। जैसे मैं कलर का वो ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं इसके जो विजिबिलिटी है वो मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जो कि ओपेसिटी भी काउंट होती है। तो वो 75 है, तो मैं यहाँ पे भी 75 रख देता हूँ। एक और मज़े की एक्सेसिबिलिटी टिप, जब भी आप इसमें कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको कंट्रास्ट रेशो बताता है, जो कि आपकी एक्सेसिबिलिटी में बड़ा काम आता है। तो जब भी आप इसमें वेब फ्लो पे बना रहे हो, जब अपना कलर सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली देखता है कि बैकग्राउंड में क्या कलर है और आपका फ़ॉन्ट का क्या कलर है। तो आपको एक ये AAA AA जो है वो आपकी वो कंप्लायंस के हिसाब से आपको बता देता है, विच इज़ वेरी यूज़फुल इन दिस डे एंड एज, क्योंकि हमें बहुत सारी वेबसाइट्स को कंप्लाइन और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाना होता है। तो इस पे हमारे पास काम आती है। अच्छा, क्विकली हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्विकली डुप्लीकेट करने से पहले क्या मुझे इसको फ्लैक्स करने की ज़रूरत है? चलें, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े होकर अपनी जगह ले रहे हैं। डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमांड सी मतलब कंट्रोल C कंट्रोल V कर सकता हूँ। एप्पल पे है तो कमांड V कमांड C, या फिर मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर मैं जो कि हमारा कमांड D का ऑप्शन होता है, मैं उससे भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कमांड D प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे वो डिव्स ऐड होती जा रही हैं। अब देखें तो ये डिव्स सारी जो हैं, पहले मैं वैल्यूज़ ले आता हूँ, फिर हम इसको फ्लैग्स के ज़रिए अलाइन करेंगे। और 100% लास्ट वाले में है, और हमारे पास बॉटम में कुछ वैल्यूज़ हैं। आई होप आप लोग सो नहीं गए हों। नहीं जाहिर, we're observing. ओके Nini, it's very much interesting. चलो, गुड टू नो दैट। I'm I'm about to see कि आप इसको flags पे horizontally कैसे set करेंगे, because या I think दो divs ये है, एक small font है और plus percentage है, इसको भी flex करेंगे और फिर horizontally भी flex करेंगे। नहीं, हम क्योंकि हमारे पास फ्लैक्स और ग्रिड में ये ऑप्शन होता है, जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं। तो अगर हम जो भी हम फ्लैक्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यहाँ पे अगर देखें, तो जैसे ही मैं इसको फ्लैक्स दबाऊंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। Alright. ठीक है। और अगर सेम मुझे अगर वर्टिकल क्या कहते हैं कॉलम में रखना होगा, तो मैं इसको डायरेक्शन इसकी वर्टिकल कर दूंगा, सही। जो कि हमें ये वाली डायरेक्शन मोबाइल में काम आएगी और हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन हमारी डेस्कटॉप पे काम आएगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे भी चुपचाप स्पेस बिटवीन यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं जानना कि इनके दरमियान में गैप कितना रखना है। मुझे ये पता है कि मेरे डिज़ाइन में स्पेसिंग है और ये तीनों जो है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं फ्लैक्स को काम करने दूंगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया स्पेस बिटवीन, और उनको जैसे जहाँ तक जगह मिलेगी वो अपने आप को एक दूसरे से धकेलते रहेंगे। ठीक है। तो ये सेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, बट आई थिंक फॉन्ट थोड़ा सा और बोल्ड है, तो मैं उसको फॉन्ट को अब रिपीटेड क्लासेस का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमने क्लास एक बना दी थी और उसको रिपीट किया है, तो मुझे सिर्फ एक क्लास को स्टाइल करना है, वो बाकी में ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगा। तो सेमी बोल्ड किया तो बाकी के सारे भी सेमी बोल्ड हो गए। अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास अब एक लाइन आ रही है डिवाइडर की,
ये लाइन मैं कैसे बनाऊँ। चाहूँ तो इमेज एक्सपोर्ट करके एसवीजी एक्सपोर्ट करके वो इंपोर्ट कर लूँगा, बट क्योंकि इट्स अ सिंपल लाइन तो मैं एक कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, डिव ऐड कर लेता हूँ, डिव ऐड करके इसको मैं अच्छा सा डिवाइडर वाला नाम दे देता हूँ क्योंकि ये मे बी रीज हो जाए आगे कहीं पे, और इसको फ़ौरन से 1 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ मैंने कुछ सोचे समझे, और एक बैकग्राउंड आई थिंक हमारा ब्लैक ही है तो ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नीचे 60 पिक्सल का गैप है, तो मैं इसी को ही मार्जिन दे देता हूँ 60 पिक्सल्स की। मैं कन्वर्ट करता हूँ उसको आरईएम में। अगर आप चाहें तो पिक्सल्स में ही रहें, बार बार ये आरईएम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है तो इसलिए मैं, क्योंकि हम एक्सेसिबिलिटीज़ और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। और मैंने देखें बातों बातों में गलत एक मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक ये कर दी है मैंने पैडिंग ले ली है, मुझे मार्जिन की जगह देनी थी। जैसी पैडिंग ली तो वो इनसाइड उसने जो है ना वो स्पेसिंग ले ली, तो इसी बहाने पैडिंग भी एक्सप्लेन हो गई। हमें मार्जिन लेनी है ताकि वो आउटर साइड को पुश करे बजाय के इनसाइड को। अच्छा अभी सिर्फ टॉप डाली है, ऑल्टर दबा के करता हूँ एंटर तो दोनों साइड पे टॉप बॉटम ऐड हो जाता है, बट मैंने अभी इस टाइम नहीं किया था तो सिर्फ ऊपर से आया। ओके, डिवाइडर आ गया है। मैं चाहूँ तो किसी भी वक्त यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आई कैन जस्ट सी द प्रीव्यू, और मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करके चेक भी कर सकता हूँ कि अभी तक कैसी प्रोग्रेस है। इस पे काम करने की ज़रूरत है, लगे हाथों इसको भी फ्लैक्स की मदद से हम जब जैसे ही टैबलेट पे जाएं तो हम चाहेंगे कि ये वर्टिकल हो जाए और मे बी सेंटर, और मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि हम इनको भी सेंटर कर सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट दिस वे। उसके लिए हमें पहले इसको लेफ्ट अलाइन रखना पड़ेगा ताकि ये ओवरराइड ना हो, और हम जब इधर जाएं तो इसको सेंटर लाइन कर दें। सेम गोज फॉर दिस वन, इसको भी लेफ्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट विड्थ में, डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट में दे देते हैं और यहाँ पे हम सेंटर लाइन करते हैं। तो ये हमारा फ्लैक्स की पावर हमें यहाँ पे नज़र आई, रिस्पॉन्सिव में किस तरह से वो हमें हेल्प कर रहा है। तो जैसे ही मोबाइल पे जाएंगे तो ये स्टैट्स हो जाएंगे। हाँ थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ का भी मसला है, बट लेकिन इसको हम आगे जाके या बल्कि कर ही देते हैं, 6 कर देते हैं। 6 वुड बी गुड। चलें, तो फिर हम कहाँ थे, हम थे डिवाइडर में। ओके, और हम ऐड करने वाले हैं ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन के लिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग, वैसे तो फ्लैक्स पे भी हो जाता है। तो अब हम एक और डिव लेंगे, उस डिव का हम नाम देंगे लेट्स से, क्या नाम दें, इन्फो बोल देते हैं उसको, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है। इसमें हमें हेडिंग नज़र आ रही है और टेक्स्ट नज़र आ रही है। अब ग्रिड की पावर क्या है कि अगर मैं फ्लैक्स यूज़ करूँगा तो मुझे हर ऑब्जेक्ट को तकरीबन जो है वो एक डिव में लेना पड़ता है। ग्रिड में क्या है कि मैं अगर ग्रिड डिफाइन करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी एलिमेंट्स है वो उस ग्रिड में खुद ही एडजस्ट होंगे, मुझे उनकी डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ़ौरन से इसमें, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, तो मैं फटाफट से हेडिंग और पैराग्राफ यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इनकी कॉपी ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, और ऑलराइट, और मैं हाथ आके हाथ इनको कुछ नाम भी दे देता हूँ, इन्फो हेडिंग और इन्फो टेक्स्ट में भी सही रहेगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पैराग्राफ मैं हमने ऐड किया, इससे पहले आई थिंक पैराग्राफ हमने ऐड नहीं किया था, तो उसकी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। तो हाथ के हाथ मैं इसके फॉन्ट साइजिंग वगैरह भी सेट कर लेता हूँ, 18 पिक्सल्स,
हमारे बनते हैं 1.25 रैम। 1.25 रैम टाइपोग्राफी में हमने जाके इसका वो कर दिया। जस्ट टू बी श्योर हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, या बल्कि इनहेरिट करने देते हैं पेरेंट से, और हम इसको लेफ्ट लाइन रखते हैं। और आई थिंक हमारा लाइट वर्जन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और हम सेम, अच्छा मैं इसमें जो है मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए तो हम इसको 0 कर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल से उठ के आ रही थी, अब देखिए। और हेडिंग में ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट H1 आया होगा, तो हम एज मेंशन के H1 एक ही होना चाहिए पेज पे, तो हम इसको H2 कर देते हैं। और हम जैसे ही इसको H2 करते हैं तो ओके, H2 करते हैं तो हमारे पास 48 पिक्सल्स, 48 पिक्सल्स को कन्वर्ट करें इनटू 3 रैम, एंड 3 रैम वुड बी फॉर दिस। और इसको भी हम 1.5 यूनिट डैश यूनिट यूज़ करते हैं, जो कि कोई यूनिट नहीं होता। और हम इसको ग्रिड से ऑल्सो इसका जो बॉडी वेट है वो भी डिफरेंट है, तो बॉडी वेट में इसको आई थिंक सेमी बोल्ड भी ओके। और अब मैं जो इसको लेआउट को जो अचीव करूँगा वो ग्रिड थ्रू ग्रिड करूँगा। तो अभी हमने फ्लैक्स देखा था, अब हम ग्रिड से करते हैं। तो जैसे ही मैंने ग्रिड दबाया तो मुझे इसमें एक टेबल सेल्स की तरह से जो है ना 4 कॉलम्स बना के दे दिया, और ऑटोमेटिकली इसमें जो है एलिमेंट्स को जहाँ उसको फर्स्ट जगह मिल रही है वो उस कंटेंट को उधर एडजस्ट कर रहा है। इन दिस केस हमें आई थिंक, और इसमें फिर डिफरेंट यूनिट है, मैं चाहूँ तो ये कॉलम को बड़ा कर लूँ, उसको छोटा रखूँ, और चाहूँ तो इसको छोटा कर दूँ, उसको बड़ा कर दूँ, लेफ़्ट वाले कॉलम को बड़ा कर दूँ। बट लेकिन अभी फ़िलहाल 1 फ्रैक्शन यूनिट काफ़ी है हमारे लिए। और हम इसको डन करते हैं। ये यकीनन कहीं से स्पेसिंग, ओके डिफ़ॉल्ट H2 के स्टाइल से स्पेसिंग ले रहा है, तो मुझे स्पेसिंग हटानी है। और आई थिंक हमारी जो कैरेक्टर विड्थ है, हम इसको कैरेक्टर विड्थ दे देते हैं जस्ट इन केस। तो हम चाहेंगे कि ये 20 कैरेक्टर्स की मैक्स विड्थ ले ले। और सेम गोज फॉर दिस वन, हम इसको 47 कैरेक्टर्स की मैक्स विड्थ दे देते हैं। और मे बी 48 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम इसका प्रीव्यू लार्ज स्क्रीन पे करेंगे तो वहाँ पे ये संभालेगा उस लेआउट को। और अगर मैं अभी नोट करूँ तो ये आगे की तरफ होना चाहिए, अभी ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है। तो मैं इसकी एलिमेंट को पकड़ के, अच्छा इसमें भी यही है जिस तरह से फ्लैक्स बॉक्स में होता है, इसमें भी आप हर एलिमेंट को जो है वो फ्लैक्स में ही होता है कि आप पेरेंट को पकड़ के चाइल्ड को सारे उसको कर सकते हैं। इन दिस केस हमें सिर्फ इसको राइट पे लेके जाना है, तो हम सिर्फ इस वाली एलिमेंट को, पैराग्राफ वाले एलिमेंट को पकड़ के इसको हम जस्टिफाई एंड कर देंगे, और इसको एक दफ़ा प्रीव्यू में देखेंगे तो वो एंड से अलाइन हो गया, राइट। लेट मी क्विकली ऐड एक जो सुपर टेक्स्ट वाला पार्ट है, विच इज़ अ कूल थिंग टू हैव। हमारा टाइम थोड़ा कम रह गया है, लेट्स जस्ट क्विकली रैप दिस वन। मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया, मैं फ़ौरन से जाऊंगा कंटेनर में, मैं एक डिव ले लूँगा, और इस डिव का नाम मैं दे देता हूँ पहले मैं इसको एक सुपर टेक्स्ट रैपर, और पेरेंट भी आप बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक ले लूँगा और उसको मैं नाम दूँगा सुपर
टेक्स्ट स्क्रॉल, क्योंकि हमें इसमें स्क्रॉल की एनिमेशन हमने सोचा है कि हम इसके करेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और मैं देख लूँ कि इसमें नीचे 2 कॉलम्स आ रहे हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है तो ये हमने अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता है। और ग्रिड में दोबारा एक चीज़ मैं दिखा दूँ, अगर मैं जैसे ही इसको डुप्लीकेट करूँगा तो जो भी इसके पास नेक्स्ट सेल की जगह होगी वो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को वहाँ एडजस्ट कर लेगा, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, नो। अच्छा, मैं सुपर टेक्स्ट पे था। सुपर टेक्स्ट का फॉन्ट है 230 पिक्सल्स। 230 पिक्सल्स वुड बी 14 पॉइंट, बल्कि हम इसमें VW यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ये टेक्स्ट हर स्क्रीन पे ही बड़ा चाहिए। तो लेट्स जस्ट ऐड अराउंड 10 VW मे बी, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट दे देते हैं। मीडियम वुड बी ओके आई थिंक। और हाँ, एक चीज़ हो गई कि मैंने इसको कंटेनर के अंदर ले लिया, तो मुझे इसको कंटेनर से बाहर निकालना है ताकि ये H2H हो जाए। तो मैं इसको डिफ को मेन रैपर को पकड़ के बाहर कर दिया। अब मुझे अचीव करना है कि ये टेक्स्ट कटे विदाउट मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना आए और ये टेक्स्ट भी कटे। तो हम क्या करेंगे कि हम इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे, और इस टेक्स्ट को पकड़ के हमारे पास आई थिंक टाइपोग्राफी में स्टाइल होते हैं ऑप्शन नो ब्रेक का, तो ये मोर ऑप्शन मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ब्रेकिंग में नॉर्मल है। अब मुझे इसको बेसिकली नो रैप करना है। जैसे ही मैं नो रैप करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल आएगा, लेकिन साथ साथ मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर एक रैपर डिव ली थी जिसको मैं सिंपल सीधा सीधा ओवरफ्लो हिडन की जो है वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो एज इट मेंशंस इट हाइड्स ओवरफ्लो कंटेंट विदाउट एडिंग अ स्क्रॉल बार। तो भले इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपके स्क्रीन साइज से बड़ा है, बट वो कभी भी स्क्रॉल बार नहीं आने देगा अगर आप पेरेंट डिफ को ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं। तो अब वो स्क्रॉल बार चला गया, मैं लेफ़्ट राइट स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो और सेम हमारे पास इसके ऊपर एक स्पेसिंग भी है, तो आई थिंक हम इन्फो वाली को स्पेसिंग बॉटम स्पेसिंग दे देते हैं जो कि हमने डिवाइडर में दी थी। आई थिंक 3.75 थी जो कि 60 पिक्सल्स बनती है। तो मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ इन्फो को 3.75 REM। ओके, अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो कुछ इस तरह का लेआउट हमारा बन गया। ऑलराइट, दिस इज सिंपल इमेज। मैं सेक्शन पे जाऊंगा, मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव का नाम देता हूँ टायर इमेज पेपर, और इसमें एक इमेज का मीडिया ड्रॉप करता हूँ, एलिमेंट ड्रॉप करता हूँ, और इसको यहाँ से जो क्योंकि हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी तो हम यहाँ से व्हील अपलोड कर देते हैं। हम इसको भी क्लास दे देंगे टायर इमेज। टायर इमेज को हम कहेंगे कि आप 100% बिड ले लें, और अब जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये हमारे साथ साथ जितनी बड़ी रेजोल्यूशन होगी ये टायर उतना बड़ा होता रहेगा। एंड आई थिंक सेम गोज़ फॉर डिफरेंट रेजोल्यूशन ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ग्रिड रिस्पॉन्सिव में ब्रेक हो रही है, तो हम हाथ के हाथ उसको भी ठीक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ग्रिड को एडिट करूँगा और मैं ब्रेक पॉइंट इसका नीचे लेके जाता हूँ, तो आई थिंक इस पर तो ठीक है। मोबाइल पे हमें एक कॉलम पे मूव होना चाहिए, तो मैं इस वाले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये ऑटोमेटिकली टॉप एंड बॉटम अलाइन हो जाएगा। इनकी स्पेसिंग भी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। इन कॉलम के दरमियान की स्पेसिंग, नहीं स्पेसिंग नहीं चाहिए तो इनको ज़ीरो कर देंगे, स्पेसिंग चाहिए तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बगैर मतलब मार्जिन और पैडिंग दिए। ओके, तो हमारे 2 सेक्शन पूरे हो गए हैं। अब मैं आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट ऐड, मैं
नेविगेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी वाला जो भी हमारा पार्ट है वो एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बिल्ड किया हुआ है पहले से, और वो 2 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्विकली। तो एक तो नेविगेशन को कर लेते हैं। नेविगेशन में हमारे पास में ऑलरेडी प्री बिल्ड नेव बार है, तो हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल काम ऑलरेडी हुए हुए होते हैं, जैसे कि मेन्यू को कोलैप्स करना, ड्रॉप डाउन का खुलना। तो हम इसको ड्रैग करके टॉप पे ले जाते हैं, और ड्रैग करके टॉप पे ले जाके सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ओके। और हम इसमें ब्रांड वाली जहाँ साइड पे लोगो ऐड करते हैं, तो हम इमेज ब्रांड की डिफ को सिलेक्ट करके आई जस्ट एडिंग इमेज, और इस इमेज को हम फॉन्ट, इमेज ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तो कुछ साइजिंग का इशू है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके इसको भी एक लोगो की क्लास पास करके इसका साइज सेट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हमारे एसवीजी हमने अपलोड किया तो उसमें साइज़ बिल्कुल तकरीबन परफेक्ट ही उठाएगी, तो वी डोंट नीड टू। अच्छा, कंटेनर इसके अंदर भी आया है, तो हमें अपने कंटेनर से मैच करना है, तो हमारी क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम वो क्लास इस वाले कंटेनर को रखेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी, वरना ये डिफ़ॉल्ट अपनी कंटेनर की क्लास ले रहा था। नेव मेन्यू है, नेव मेन्यू में नेव लिंक्स होंगे। नेव लिंक्स हमारे वाइट कलर है, ओके, तो हम उसको वाइट कर देते हैं। और अब उसने जैसी क्लास बनाई है तो अब नोटिस कि यहाँ पे वो अडेप्ट नहीं हुआ, तो हमें नेव लिंक यहाँ पे, क्योंकि वो जैसे ही मैंने उसके चेंज किया तो उसने फ़ौरन से क्लास एक हमारे लिए बना दी। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट इम्प्लीमेंट दैट क्लास ऑन दिस। अच्छा, अब मैं अगर देखूँ तो मैं चाहूँगा कि इनको फ्लैक्स के थ्रू मैं स्पेस्ड आउट कर दूँ, तो मैं एक डिव ले लेता हूँ उसके लिए। डिव का नाम रख देता हूँ नेव फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स कर देता हूँ, बल्कि पहले इसके अंदर नेव कंटेनर के बाद मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पहले तो उसके अंदर लेके जाता हूँ। मेन्यू बटन, ब्रांडिंग टॉप पे। अब मैं जब इसको फ्लेक्स करूँगा तो ये एक साथ इस तरह से अलाइन हो गया। मुझे मिडिल अलाइन चाहिए तो मैं इसको मिडिल अलाइन कर लूँगा, मुझे स्पेस बिटवीन चाहिए तो मैं स्पेस बिटवीन कर दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी नेविगेशन रेडी हो गई। एक चीज़ और है हमारी नेविगेशन में, वो है बटन। तो ऑर्डर नाउ का बटन मैं ऐड कर लेता हूँ। बटन की क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो लेट्स ऐड अ बटन ओवर हियर। और हम इस बटन को पहले तो क्लास दे देते हैं बटन की, ओके। और बटन में टेक्स्ट है ऑर्डर नाउ, राइट। अच्छा, अब मैं देखूं तो ये नेव बार अपनी एक पोजीशन ले रहा है और सेक्शन को नीचे धक्का दे रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट का फंक्शनलिटी होती है। मुझे ये टॉप पे चाहिए, सेक्शन हीरो के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि नेव बार को पकड़ के पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा। जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन की है तो ये कोलैप्स हो गया, तो मैं इसको टॉप करूँगा तो ये, बल्कि एहतियातन मैं इसको 100% विड्थ भी दे देता हूँ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब ये नेविगेशन हमारी सेक्शन के टॉप पे आके बैठ गई है। और अब मैंने एक चीज़ और नोट की है कि मेरा बटन जो है वो ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे कॉम्बो क्लास की मदद लूँगा। अभी तक हमने कॉम्बो क्लास कहीं पे यूज़ नहीं की थी। बटन ऑलरेडी एक क्लास है, जो भी मैं इस पर स्टाइल चेंज करूँगा तो जहाँ पे भी रीयूज़ हो रही है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको ब्लैक करना है, तो मैं मेन क्लास बटन रहने दूंगा, साथ में मैं एक ब्लैक या जो भी आप इसको नाम देना चाहें याद रखने के लिए, आई थिंक बटन ब्लैक कर देता हूँ ताकि स्पेसिफिक हो जाए। और मैं फ़ौरन से इसको बैकग्राउंड ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इस बटन की पैडिंग को छेड़ता हूँ तो ऊपर भी हो रही है, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है, क्योंकि मेन क्लास यही लगी हुई है।
बट लेकिन अगर मैं वहाँ पे कुछ करूँगा तो आई एम श्योर कि वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉम्बो क्लास ऐड हो गई है। तो अब सिर्फ जब मैं इधर भी बटन ब्लैक लगाऊंगा तभी ये स्टाइल इधर जो है वो ऐड होगा। ओके, ऑलराइट, सो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, और हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी जो है वो करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक क्विकली जस्ट रन इट डाउन। जो ये वाला फाइल है, इसमें पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ भी है और ये क्लोनेबल है। आप मेरे वेबफ्लो के, मैं लिंक अभी आपसे शेयर करता हूँ इसका, तो यू कैन ऑब्वियसली गो ओवर देयर और आप इसका डुप्लिकेट करके अपने पास खेल भी सकते हैं इसके साथ। एक और चीज़ थी जो कि क्लोनेबल्स हैं, इसको ज़रूर आप देखिएगा। ये पार्ट जो है मैंने बनाया नहीं है, मैंने क्लोन किया है। मैंने क्लोन कैसे किया है, मैं वेबफ्लो की साइट पर जाता हूँ, वहाँ पे मेड इन वेबफ्लो का एक सेक्शन है जो कि ये है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ FAQs लिखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्लोनेबल जो है वो प्रोजेक्ट आता है, और मैं उसको क्लोन करके अपने पास जब ऐड करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये स्क्रिप्ट आती है। Animation. सॉरी, कम अगेन प्लीज। I just wanted to ask, how did you add animation throughout? How did I add animation? So if you see the clonable project which I will give you, आप उसमें देखेंगे तो there is a third section in your Webflow panel which is interaction. तो यहाँ पे आप element trigger के through interaction add कर सकते हैं कि whenever this objects scroll into view, तो जैसे आप वो करेंगे ऐड, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो आई जस्ट सेलेक्टेड अ बेसिक एनिमेशन जो स्लाइड अप एंड डाउन, स्लाइड इन स्लाइड आउट, डिफ़ॉल्ट जो है ना वो है। बट यहाँ पे मैंने जो है जो ये वाला पार्ट है, इसको जैसे हम अगर इसमें देखते हैं अपने डेमो पे, तो इट्स स्क्रॉल विद योर माउस स्क्रॉल। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो वो लेफ़्ट जा रहा है, जब नीचे आ रहे हैं तो राइट जा रहा है। तो ये हमने अचीव किया है पेज स्क्रॉल ऑप्शन पे। तो पेज ट्रिगर, पेज स्क्रॉल, और पेज स्क्रॉल पे सॉरी दिस वन, वाइल स्क्रॉलिंग स्क्रॉल टेक्स्ट में मैं सिर्फ उसको मूव करा रहा हूँ, उस टेक्स्ट को पकड़ के, उस क्लास को पकड़ के। पहले मैंने 0 रखा, एंड देन जब वो स्क्रॉल 100% हो सेक्शन पे तो बस -7% जो है वो स्क्रॉल कर दिया। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू भी इसका थोड़ा सा देख सकता हूँ। जब मैं इसका प्रीव्यू बटन ऑन करता हूँ तो ये सी कि 0 पे वो 0 था, और जैसे 100% वो स्क्रॉल करके गुजरता है तो वो -7% हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेशन हो सकता है फॉर एनिमेशन, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस एनिमेशन आती है। तो जब आप एटलीस्ट पहले बिल्ड करना सीखें तो फिर ये नेक्स्ट पार्ट आपका जो है ना वो हो सकता है। ऑलराइट, ओके, बाद हैव अ क्वेश्चन। हाय, हाउ आर यू? बस Hi. मेरा एक I'm सवाल good, ये I'm था good. कि जाहिर है हर क्लाइंट को वेब फ्लो पे चीज़ नहीं चाहिए होगी, तो अगर हम वेब फ्लो जी, जी। कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे HTML CSS के प्रोजेक्ट में, या किसी और प्लेटफॉर्म वगैरह पे? अच्छा, Webflow also gives you an option to share your code, but उसके लिए आपको obviously paid plan चाहिए होता है। ओके, तो आप अपना जो है ना जो भी HTML CSS है जी, वो प्रोडक्शन रेडी HTML CSS के साथ, JS के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जिप फाइल बना के दे देगा, वो आप अपने डेवलपर को अपनी पर्सनल होस्टिंग पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। चलें ठीक है। और बाकी इस प्रोजेक्ट का लिंक आप कहाँ शेयर करेंगे? इधर ही शेयर करेंगे या ईमेल पे? तो लेट्स डू दैट। अच्छा, ये कुछ नोटेबल मेंशंस हैं, ये आप लोग ज़रूर फॉलो करें। रिल्यूम लाइब्रेरी, ये बड़ा अच्छा इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनकी वेबसाइट भी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर टिमोथी रेक्स एक बहुत
एक्सलेंट बंदा है, इसने वेबफ्लो पे बेहतरीन काम किया हुआ है, इसका यूट्यूब चैनल है, ये बड़े अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स डालता है, इसको ज़रूर फॉलो करें। फ्लक्स अकेडमी इज़ अनदर नोटेबल मेंशन फॉर वेबफ्लो। मेड इन वेबफ्लो क्लोनेबल्स का सेक्शन है जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, फिग्मा कम्युनिटी ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये PX to REM कन्वर्टर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये मैंने मेनली ये वाला यूज़ किया था। और on at last you can take a screenshot of this slide, और हमारा एक Facebook ग्रुप है, Kick-Ass UX Designer Developer Pakistan. You can definitely jump over there. I will post the link over there as well. और ये PowerPoint भी, और जैसे भी हम ऑब्वियसली क्रिएटिव के उसके चैनल पे भी जो है ये अपलोड होगा कुछ टाइम के बाद, तो वहाँ से आपको फिग्मा डिज़ाइन का फाइल भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको वेबफ्लो क्लोनेबल भी मिल जाएगा। और जो उनको भी फ़ौरन से चाहिए, जो वेट नहीं कर सकते, तो वो वेबफ्लो पे Can you also share the link in the chat Sure. if that's Let's just- possible? Yeah. एंड दिस वन, और ग्रुप का भी लिंक डाल देता हूँ। दिस इज द ग्रुप, ताकि यहाँ पे मैं भी हूँ और भी एक्सपर्ट्स हैं हमारी टीम से, तो यहाँ पे एक चैट का भी सेक्शन है, फिग्मा टू वेबफ्लो, आप चाहें कि उधर से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर देम ओवर देयर। Zaid, are you ready to take on the questions? Yeah, There are a sure. few in the chat. So they are from like some while back, so I'm just going to read them out. How do you approach the balance between aesthetics and user experience in web design, especially when dealing with complex user interfaces? देखें, जो एस्थेटिक्स होती हैं वो डे वन पे तो नहीं आती। एज आई मेंशन, यू हैव टू ट्रेन योर आईज फर्स्ट। और वो कैसे करते हैं, आपके पास इंस्पिरेशंस होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको देखना होता है, आपको डिफरेंट डिज़ाइनर्स को फॉलो करना होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आप फ़ौरन से जाके देख सकते हैं कि अभी जैसे कि मैंने ये किया, मैंने भी ये देखा कि यार मुझे मॉडर्न टच में एक वेब डिज़ाइन बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो आई न्यू कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक तो ये होता है कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है, तो आई न्यू कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली कम्पीट विद योर सेल्फ फर्स्ट, कि यार आप हर डिज़ाइन अपने से पिछले से बेहतर बनाते जाएँ, और दूसरों से सीखें, दूसरों की फाइल्स को एक्सप्लोर करें कि वो किस तरह से बनाते हैं। तो फिग्मा कम्युनिटी, अगेन मेंशनिंग दैट, कि वहाँ पे जाके उनसे सीखें उन्होंने किस तरह से लेयर्स किया हुआ है, एंड देन वो क्या अप्रोच ले रहे हैं, फॉन्ट सिलेक्शन क्या है। तो उस तरह से आप जो है अपने एस्थेटिक्स को, अपने डिज़ाइन सेंस को, और ये ऑन गोइंग है। आज आपके एस्थेटिक्स कुछ और कह रहे होते हैं कल को, क्योंकि इसमें नॉट ओनली कि वो दिखता अच्छा है, वो फंक्शनल भी हो, वहाँ एक्सेसिबिलिटी भी हो, कि वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दिख ही अच्छा रहा है, वो यूजेबल ना नहीं है तो फिर बेकार है। तो यूजेबिलिटी, एस्थेटिक्स, सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, और वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, काम कर करके आती हैं। डे वन पे कोई भी नहीं बता या सिखा सकता। Okay, thank you. How to select color scheme and overall typography size? अगेन दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू डिज़ाइन, हमारा ये इस पे था नहीं, बट लेकिन ये है कि आप कुछ वेबसाइट है आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर आपको हैक चाहिए तो आप जाके typescale.com पे जाके अपने टाइपोग्राफी साइज जो है यहाँ से देख सकते हैं, बेस फॉन्ट 16 रख के। तो आप अपने 48 पिक्सल्स, 39 पिक्सल्स, हेडिंग 1, 2, 3 और पैराग्राफ, तो इजीली यहाँ से अपने फ़िलहाल बेसिक फॉन्ट टाइप जो है यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं। वरना आपको फिग्मा कम्युनिटी में भी जो है वो टाइपोग्राफी के बहुत सारे फाइल्स मिल जाएंगे जिनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन पे, जो कि हर रेजोल्यूशन पे ठीक लगता है। Okay. So someone has asked for practice purposes, which app do you recommend? But I think like this needs more context. किस चीज़ की practice के लिए? Yeah. So Heba, if she's here, she can maybe clarify, or maybe we can move on to the next question. I think I already mentioned Figma. अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो Figma पे करें। Even you can use Canva as well, but लेकिन Yeah, वो okay. mostly तो but फिलहाल Figma क्या। So is Webflow free or paid? I think you've already answered this, right? Yes,
अगर आपको .com डोमेन लगाना है या आपको 2 पेजेस से ज़्यादा बड़ी वेबसाइट बनानी है तो यू हैव टू गो फॉर पेड प्लान. Okay, great. Okay, so can you explain how to import the Figma design to Webflow? We already did. Yeah, okay, great. Will Webflow provide with the code? And then you answered this as well, Yeah. right? Yep. Yeah. Have we started from a blank template on a Webflow? Yes. I think, okay. Yes. Yeah. Okay. Let me see any more. Someone has written a comment. I think this is very similar to WordPress. What is it? Can you answer? I think think it's very similar to WordPress. Yes, it is. Drag and drop जो Elementor DB WordPress पे theme use कर चुके हैं उनके लिए काफी easy है Webflow पे move होना. Okay, so someone had asked in context of CC, like, do we use Figma and Webflow as a UI UX designer over here? Yes, for startups जो हमारे पास आते हैं जिनके पास जो है वो फौरन से एक वेबसाइट चाहिए होती है और बहुत हैवी काम नहीं करना होता तो वी आल्सो रिकमेंड देम टू बिल्ड अ वेबसाइट ऑन वेबफ्लो क्योंकि वर्डप्रेस कम्स विद अ लॉट ऑफ लाइक उसमें ऑप्टिमाइजेशन उसमें सर्वर और वो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है जस्ट लाइक जो शॉपिफाई पे कॉमर्स स्टोर है इसी तरह से वेबसाइट्स के लिए वेबफ्लो आपको टेक्निकल पार्ट हैकिंग हो रही है जी लोड टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है CDNs लगाने हैं वो सब आपकी चीज़ें हैंडल वेबफ्लो खुद करता है यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट हाउ योर वेबसाइट लुक्स बस उस पर आपको काम करना होता है. Okay, there is a question about adding animations via Webflow. You've already answered that as well. यस एनिमेशन वाला पार्ट वैसे बहुत बड़ा है और थोड़ा एडवांस लेवल का है बेसिक्स क्योंकि हमारा हमने बेसिक कवर करनी थी तो अभी हमने सिर्फ कन्वर्जन सीखी है हमारा जो मैं फाइल दे रहा हूँ क्लोनेबल वहाँ पे जो है वो उनको एनिमेशन वाला पार्ट भी मिल जाएगा जिनको जानना है वो वहाँ से भी देख सकते हैं बट लेकिन हम इन फ्यूचर में भी इसके ऊपर एक सेशन कर लें जो कि एनिमेशन रिलेटेड हो. Okay. While design in Figma, we use Bootstrap Grid for responsive design, but you didn't use this grids in Webflow. So is this okay to design without follow grids? यस अगर तो हम अब क्योंकि आप वेबफ्लो में बना रहे हैं तो क्योंकि CSS ग्रिड और फ्लैक्स ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें आप ऑटोमेटिकली अपने कॉलम्स सेट कर सकते हैं तो वी डोंट एक्चुअली यूज़ बूटस्ट्रैप ऑन वेबफ्लो तो वेबफ्लो की अपनी ग्रिड सिस्टम है और अब क्योंकि हमें डिफरेंट साइट से आप जब मेरी ये वाले साइट को प्रीव्यू करेंगे तो आपकी जितनी भी लार्ज स्क्रीन टीवी इवन टीवी पे भी जो है ना आई एम श्योर कि साइट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी बजाय ये कि वो बहुत छोटी दिखने लगे वो H2H ही फैलेगी क्योंकि हमने 95% जो है वो यूज़ किया है तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने बूटस्ट्रैप को इग्नोर किया और बूटस्ट्रैप की ज़रूरत भी नहीं है इसमें वैसे. Can we add backend on Webflow? Backend, we have an option to create CMS जैसे कि blog section हो गया जैसे कि portfolio section हो गया तो हम उसको CMS यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और वो हम CMS कलेक्शन अपने साइट पे ऐड कर सकते हैं बट बैकएंड से मुराद अगर ये है कि हम कोई प्लगइन या कोई इस तरह की चीज़ बिल्ड कर सकते हैं तो वो अभी हम ऐसे नहीं कर सकते. आई थिंक ऐप्स के जो है ना वेबफ्लो पे ऐप्स का कॉन्सेप्ट अभी आया है इट्स फेयरली न्यू वो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है तो ऐप्स के थ्रू आप जो है अपने चीज़ों को कॉल कर सकते हैं बट फॉर नाउ आप ब्लॉग तो बना सकते हैं बट बैकएंड से मुराद तो ये है कि फिर पूरा एडमिन पैनल और वो सब तो वो हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि विजुअल बिल्डर है सामने से ही सारा काम होता है. Okay. Do we need to optimize Figma design to auto layout in case we want to import it on Webflow? If you have to use a plugin Figma to Webflow then we have to convert our Figma design into auto layout first क्योंकि वो उसी तरह से ही चलता है जो उनका प्लगइन ऑफिशियल वेबफ्लो ने रिलीज़ किया है बट ये अभी हमने तो खैर कस्टम डिज़ाइन को कन्वर्ट कर किया था बट वो भी उसमें भी लर्निंग कर्व आपका फिग्मा का ज़्यादा है आपको फिग्मा जो है ना वो बहुत सही से यूज़ करना. Can we buy domains on Webflow? You have to buy a domain from GoDaddy or any other domain provider but you can obviously map but for mapping a domain you need to purchase a site plan. Okay.
So about the previous question that can we add backend on Webflow, I think they meant API calling. They've like clarified. Yes, there is a dev link. I have not explored it, but on Webflow, you can actually create, and there is automate version also. क्या आप अपना जो database है वो आप sheet Google Sheet पे रखें और उससे आप डेटा को कॉल कर लें, तो उस तरह के ऑप्शंस हैं, बट आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट एज ऑफ येट. Okay. So there are other questions like the recording and everything, which will be shared. It will be uploaded on our YouTube channel by tomorrow and emailed to everyone who registered. And then we will be sharing it on our LinkedIn as well. There were some questions related to the careers and internships. So we have our careers page at Creative Chaos. So you guys can check whatever the openings that we have currently over there. I am sharing the YouTube channel link again in the chat for people to like subscribe so that they're notified whenever the recording is up. Also, yeah, about the internships as well, that they happen once a year. So the April one has already, I think, ended. This is the last week of that one, so you can apply again next year. And yes, all the feedback has been noted on like future sessions, and we would love to have Zaire back again to have more sessions on animation and design. I'm just going to share the feedback form again in the link, and I would appreciate if you guys can just give the response over there as well, that what do you, if in future sessions, what do you want, and we can look into that as well. So just sharing the feedback link over here. Zaire, is there anything else that you would like to add? No, I think that is enough for me, and it's been a great audience. So Yeah. thank you all for joining. If there is any question from the audience that I may have missed, so please do, you can unmute yourself and ask. If we don't have any questions, then we can call it a day. And thank you so much, Zaire. Thank you so much, everyone, for joining. So Thank you. Thank you, Zahir. we'll see you next Thank you, time Zahir. then. Thank you. Okay. Take care. Hafiz. Allah Hafiz.